Welcome to my channel Manifest Your Quest. I am Rashi Roop Lakshmi, a tarot reader and astrologer. Above all, I'm a manifestation and a performance coach. I'm an author of the book Manifest Your Quest, The Power of You. Today, I have a wonderful guest before me, none other than Avi Arya. And to tell you the truth, he is someone who has changed the game for himself. So let's see what he has to tell us about himself and what all he's doing in this world, because he is a legend in his own rights. So let's see what we have in store with Avi Arya. So, Mr. Avi Arya, the chief mogul at Internet Moguls, is and has been an entrepreneur for last 2 decades. And not only that, he has made a complete hybrid tech service agency for hotels, restaurants, travel companies, airlines, and tourism boards, offering end-to-end digital marketing solutions to over 600 hospitality companies in 11 countries, delivering guaranteed revenues. He has spent so many years of his life as an entrepreneur, though he wanted to become a streetcar car racer. Am I right? So let's ask him directly. So what is he all about, since he has accomplished so much for himself in such a short time of his life? And now he is dedicated to serving and making others learn, making others build their businesses. So let's see what we have to get from Mr. Avi Arya, how he has been manifesting the quest for himself and for others as well. I have before me Mr. Avi Arya, a streetcar racer turned hotelier. He owns 4 hotels today, and he is the owner of the Internet Moguls. Not only that, he is a TEDx speaker. He's a corporate trainer, a business coach, and he has interviewed the top influencers and entrepreneurs, from Gary Vee to Grant Cardone to Pat Finn to Dan Lok to Stephen Larson, and many, many more. His mission is to help students, coaches, freelancers, and professionals earn 5 lakh rupees per month. And not only that, he is a lion-hearted person. He has been helping a lot of people, and such a wonderful, down-to-earth person. It is an wonderful, wonderful opportunity to get to know more about him. So let's see what he's all about. So I have this wonderful person, Mr. Avi Arya, before me, and he will give us a bit of introduction about himself, and then he will tell us all about manifestation and how he has achieved so much for himself, and how is he helping others as well, building their businesses. Thank you, Rashi. So I always believe the shortest distance between 2 human hearts is a story. You tell a perfect stranger a good story and you win a heart for life. My name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a streetcar racer turned hotelier, now social media marketer and founder of Internet Moguls. ये है मेरी छोटी सी कहानी. That's awesome. That's wonderful. And I normally ask a very small question, but I really love that question. That is, how would you describe yourself in a song or a quote? If it is okay with you. In a song, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया. That's beautiful. And if I can ask you, since your journey up here has been a lot of ups and downs, and you have seen a lot of things in your life, so can you tell us more about your journey up here? You know what the thing is, there is nobody who's not seen ups and downs. किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता. आज की डेट में सोशल मीडिया पे थोड़ा ज्यादा दिख जाता है, और just depends on what profession you're in. अगर आप एक्टर या डायरेक्टर या किसी मूवी बिजनेस में, तो आपका सक्सेस और फेलियर ज्यादा लोगों को दिखता है. आज की डेट में सोशल मीडिया पे सबका सक्सेस फेलियर लोगों को दिख जाता है.
But everybody is going through success and failure. और everybody is going through success and failure every day, every month. कभी डिप्रेशन होती है, कभी एंजाइटी होती है, कभी डर लगता है, कभी इनसिक्योरिटी होती है, कभी लगता है कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अपने ऊपर डाउट होता है. These are all very normal things. इन चीजों से आई थिंक हम इनसे निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये किसी ना किसी वेरिंग डिग्री में चलता रहेगा. कभी भी कोई आदमी ऐसा नहीं है जो सक्सेसफुल हो गया और वो बोलेगा हो गया, अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब डर नहीं लगता. यस, फाइनेंशियल सक्सेस के साथ एक थोड़ी सी एक क्वेश्चन आ जाता है, चलो मुझे कल का नहीं सोचना, मुझे 3 महीने का नहीं सोचना, मुझे 3 साल का नहीं सोचना, मुझे 10 साल का नहीं सोचना. लेकिन वो चैलेंज नहीं है तो कोई और चैलेंज है. कोई यहाँ से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, कोई डाइट से कंट्रोल नहीं कर पाता तो वेट पुट ऑन हो जाता है, वेट की प्रॉब्लम होती है किसी को. कोई एवरीबडी इज गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम और द अदर. माय मैसेज टू एवरीबडी इज it's okay, everybody is going through it. Number one, it is okay. So you don't have to find a way out, you have to find a way out to a better version of yourself. कि आप मैं आज से कैसे बेटर बन सकता हूँ. अगर कोई एक्सरसाइज है तो उसको करना शुरू कर दो. हाउ शुड कैन आई बिकम बेटर, बट टू बिकम प्रॉब्लम फ्री, आई डोंट थिंक दैट कैन एवर हैपन. That's a beautiful message, sir. And I must say that that is something of a fact that everybody faces. What you have actually told is a big truth. And but yes, I would love to know, like you started off as a hotelier, and today you are running this huge business of your Internet Mughal. You're a chief of Internet Mughal. So I would love to know, like, how are you handling both the things together, and how is it that you manifested both the things for yourself? It's मैंने कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया, अब मैं मैनिफेस्ट करूंगा आगे मुझे क्या करना है. चलता गया मैं, और जो सामने जो सिचुएशन थी उसको करता गया. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आया बिकॉज माय डैड वाज इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. इंटरनेट में आया बिकॉज इंटरनेट में मुझे एकदम से अपनी आइडेंटिटी, अपना वजूद मिला और मुझे लगा कि मैं लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ. आई लाइक कनेक्टिंग विद पीपल, आई लव टॉकिंग टू पीपल. सो मैंने बिना सोचे समझे काफी कुछ कर लिया. अब आई एम गोइंग टू बी 45 ऑन द 29th of October. अब मैंने सोचा है कि अब मैनिफेस्ट करके देखते हैं कि कितनी मेरी मेहनत और कितनी मैनिफेस्टेशन, दोनों के मिक्सचर से क्या निकलता है. अब मैं कर रहा हूँ. सो अब जो आगे रिजल्ट आएगा वो आगे देखेंगे, पर अभी तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा है. और शायद इतना हार्डवर्क की जरूरत नहीं है. अगर आप मैनिफेस्ट करो, सोचो, विजुअलाइज करो, तो आप कोई मैजिक नहीं होगा मेरे ख्याल से. बट होगा क्या कि आप क्लियर होते चले जाओगे अपने मन में कि मैं क्या चाहता हूं. मैं जब आप समझ जाओगे आप क्या चाहते हो, तो आप किससे मिलना चाहते हो, क्या बात करना चाहते हो, कितने घंटे करना चाहते हो, किस चीज पे हाँ कहना चाहते हो, किन सारी बातों पे ना कहना चाहते हो, वो मैनिफेस्टेशन से क्लियरिटी मिल जाती है. होता क्या है, जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हम अपने माइंड में रोज एक पिक्चर बनाते हैं. मैं ऐसा होऊंगा, मेरा घर ऐसा होगा, मेरी गाड़ी ऐसी होगी, मेरी हेल्थ ऐसी होगी. तो फिर अपना मन कहता है अच्छा वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी कितनी है, हेल्थ में कितनी एक्सरसाइज करनी है. अच्छा इतनी एक्सरसाइज करनी है, क्या मैं अपने आप कर सकता हूँ? नहीं. डू आई नीड अ ट्रेनर? यस. ओके, देन आई विल बुक अ ट्रेनर फॉर माई सेल्फ एंड आई विल डू 5 days a week एक्सरसाइज विद माई ट्रेनर. तो मैं अपने हेल्थ के मैनिफेस्टेशन गोल तक पहुंचूंगा. फिर मेरा बिजनेस का गोल, डू आई नीड टू डू बिजनेस? यस. डू आई नीड टू गेट टू 20 crores a month और 20 crores a year और 20 crores a day? जो भी आपका मिशन होगा उस हिसाब से आप बोलोगे अगर इतना बड़ा मेरा मिशन है देन आई नीड टू, मेरा प्रोडक्ट भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, उतनी ही मेरी सेल होनी चाहिए. सेल होने के लिए मैं क्या करूंगा? फिर मैं लोगों से मिलूंगा, मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढूंगा, पार्टनर ढूंढूंगा. सो जब आप चीजें अपने माइंड में रोज मैनिफेस्ट करते हो तो आप उन चीजों के बारे में सोचने लग जाते हो और बाकी चीजों को जोन आउट कर देते हो अपने माइंड से. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक लाल गाड़ी मुझे खरीदनी है, आपको हम लाल गाड़ी ढूंढते हैं साथ मिलके, तो कल आप सड़क पे जा रहे होगे, आपको हर जगह लाल गाड़ी दिख जाएगी, वो पहले भी थी, लेकिन यू विल जोन आउट ऑन एवरीथिंग एल्स एंड यू विल जोन इनटू द रेड कार. सिमिलरली मैनिफेस्टेशन से क्या होता है कि हमारे माइंड बाकी चीजों को साइड कर देता है, जरूरी चीजों को हमारे सामने ले आता है रोज, और हम उन जरूरी चीजों पे फोकस करते हैं. और फोकस के बाद फिर उसके ऊपर मेहनत करनी होती है. उस मेहनत करते करते बहुत बार फेल होते हैं. मैनिफेस्टेशन से फिर हमको याद रहता है कि अरे यार कितनी अच्छी पिक्चर है, उस पिक्चर में फिर हमको होप मिलती है, फिर हम होप में फिर काम करते हैं. तो काम और मेहनत तो उसके पीछे छुपा ही हुआ है. मैनिफेस्टेशन सिर्फ अपने सपनों को जिंदा रखने की एक मेरे ख्याल से एक्सरसाइज है. आई डोंट थिंक उससे कोई ओवरनाइट मैजिक होता है. मैजिक तो काम करने से होता है.
Absolutely, absolutely. So beautifully, you have actually said and actually described manifestation. And actually, that is what manifestation is all about. The way you think you want a certain thing. और यही होता ही है कि हम जब कुछ चाहते हैं तो बस हम अपना पिक्चर जो है उसको बड़ा बना लेते हैं. Like you said, the red car, and you just start seeing red car everywhere. यही होता ही है, and that is what manifestation. And I want to know what all childhood dreams have you manifested in your life? You know, small things, and because I believe that everyone in this world has manifested small or big things in this world. हाँ, देखिए सर, मैंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था, अब मैं सोचना शुरू करा है. लेकिन आई थिंक आई मैनिफेस्टेड बोथ माई डॉटर्स. आई ऑलवेज वांटेड 2 daughters who love me like crazy and I love them like crazy. तो जब मैं उनसे रोज बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये तो मेरे को हमेशा से चाहिए था. दिस लव ऑफ 2 daughters. बहुत कम लोगों को वो ये सौभाग्य मिलता है. इधर आपके पास बेटियां हैं, वो भी 2-2. सो आई थिंक वो मैंने मैनिफेस्ट किया था. आई वॉन्टेड इट. इनफैक्ट मेरी बड़ी बेटी के बॉर्न होने से 3 महीने पहले आई हैड अ ड्रीम ऑफ हर. तो मैं अपने आई वाज स्लीपिंग ऑन माय पिलो, और मुझे पता भी नहीं था, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो पिलो गीला था फ्रॉम माय टीयर्स. और वो टीयर्स में मैंने उसको सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा था. आई डिडंट इवन नो कि वो मेरी बेटी है जिसको मैंने देखा था. मेरे को सपने में देयर वाज अ गर्ल हु वाज कमिंग डाउन द स्टेयर्स, वो दिखी थी. सो आई थिंक आई हैव मैनिफेस्टेड माय डॉटर्स डेफिनेटली, कि मेरी लाइफ में मेरे साथ हो. और आई थिंक मैंने ये मैनिफेस्ट किया है कि मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पे रहता हूँ, वैंकूवर में, कनाडा में. ब्यूटीफुल प्लेस. और एक किताब है, एकार्ट टोली ने लिखी है, पावर ऑफ नाउ, जिसकी शायद 25 मिलियन कॉपीज बिकी हैं. उसमें उन्होंने बोला था कि वो किताब उन्होंने वैंकूवर में लिखी थी बिकॉज द एनर्जी ऑफ वैंकूवर इज सच कि अमेजिंग थिंग्स हैपन. तो मुझे लगता है कि स्टेइंग इन अ सिटी लाइक दिस इज अ मैनिफेस्टेशन. एंड आगे बहुत कुछ जाने अनजाने में हुआ होगा, लेकिन अब मैं उसके बारे में ज्यादा अवेयर होऊंगा, फिर देखेंगे क्या पता लगता है क्या करना है. अब मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ इंटरनेट मोगल्स ऑफ द वर्ल्ड स्कूल, स्कूल फॉर इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स. बिकॉज इंटरनेट की जर्नी हर आदमी स्टार्ट करना चाहता है, कहाँ से करूँ कैसे करूँ, लोगों को पता नहीं है. तो अब मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ. अब मैं कह रहा हूँ ये स्कूल ऐसा होगा, एक दिन ये होगा, एक दिन वो होगा. अब मैं कर रहा हूँ, पहले मैं नहीं करता था इन सब चीजों को. और आई थिंक मैनिफेस्टेशन को मैं इसलिए नहीं करता था, मुझे लगता था यार मैजिक से कुछ नहीं होता, हार्डवर्क से होता है. लेकिन मैनिफेस्टेशन की जो लॉजिक है उसको हार्डवर्क से मिलाया जाए तो मैंने हार्डवर्क ज्यादा रंग लेके आएगा. ये अब मेरे को समझ आया, तो मैं दोनों को अब जोड़ के करूंगा. Absolutely. Or we have indeed seen that not only you have told us कि how persistence, how hard work is a major ingredient of manifestation. When you want something, you need to work towards it. तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी आपने इतना कुछ बताया है, सो आई डू नॉट नीड टू आस्क पर्टिकुलरली कि आपने कैसे इस चीज को पाया. बट देर आर, एज यू टोल्ड, कि कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं व्हेन यू वांट समथिंग and you have visualized, it comes to you, right? So you do not realize it, but yes, it comes to you. There are 2 ways to manifest. So is there, I would ask you, any specific manifestation technique that you have ever thought, anjane ya bhi anjane mein bhi, like apart from persistence? I understand that is, and I believe that is a very important ingredient, I suppose. लेकिन इसके अलावा, like meditation, many people think that meditation or clearing your mind or having clarity or something, you know, which you feel is very important. See, मुझे लगता है that the most important thing in life is संगत, the company of people who. ये कोई नई बात नहीं है. अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो आप अपने घर वालों को जितना प्यार करते हो उनको छोड़ के 4 साल लॉ स्कूल चले जाते हो. आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो अपने घर वालों को छोड़ के, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो घर वालों को छोड़ के 7-8 साल मेडिकल स्कूल जाते हो. तो हम घर वालों तक को छोड़ देते हैं जब हमको, क्योंकि हमको पता है उसी कॉलेज में जब सारे डॉक्टर के साथ पढ़ेंगे तभी डॉक्टर बनेगा. घर बैठ के मैं डॉक्टर नहीं बन सकता. तो सिमिलरली आपने जो बनना है, आपको अपनी संगत उन लोगों की रखनी पड़ेगी जिन लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं. So that will create the manifestation, that the reality that you want. It is very difficult
दैट यू स्टे विद पीपल जो रोज अल्कोहल पीते हैं और आप बोलो कि मैं तो फिटनेस में जाना चाहता हूँ, कि चाहे आप अल्कोहल ना भी पियो, लेकिन वो लोग रात को 12 बजे तक आपको बिठा के रखेंगे, आप सुबह जिम नहीं जाओगे टाइम पे, सब कुछ आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि वो संगत का असर है. सो संगत इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनिफेस्टिंग एनीथिंग. तो यू शुड नो, चाहे आपके घर वाले हों, आपके कोई भी हो, संगत आपको, यू हैव टू सी कि मैं किन लोगों के आसपास, मेरा एनवायरनमेंट क्या है. Wow. Wow, that's awesome. That is an incredible, I think that is something very जो हमारे बड़े बुजुर्ग ये चीज कहे गए हैं, and you are actually saying this, repeating all that, which is such a fact which we might have forgotten all these years. लेकिन this is something very important in fact. So if I can ask this question, what has been your eureka moment in your life? One moment when you actually gained something sparked in you and you gained the clarity. हमने इंडिया में, मैंने और मेरे 9 को-फाउंडर्स हैं, दीपक, सिद्धार्थ, और सब डिजिटल मास्टर्स अलायंस में हमारे हैं, गौरव है, कुलवंत है, गोपाल है हमारे साथ, संजय है, कुलवंत है, ये सौरभ है. हम 9 लोगों ने मिलके एक मास्टरमाइंड क्रिएट किया, डिजिटल मास्टर्स अलायंस. और हमने कहा 9 लोग मिलके हम हर संडे बात किया करेंगे, सिर्फ बात करेंगे, सोचेंगे एक और कैसे मंथन करें, एक दूसरे को बेटर. वैसे हम कंपटीशन है कहने को, बट वो 9 लोगों का साथ बिकेम डिजिटल मास्टर्स अलायंस. और हम इंडिया भर में हमने हजार लोगों के बड़े बड़े शोज करे. इतना काम किया हमने, इतना काम किया कि वहां से मुझे एक यूरेका मोमेंट आया, वाओ, साथ मिलके बहुत कुछ हो सकता है, अकेले कुछ भी नहीं होता. सो अब उसके बाद कुछ भी काम करो, साथ में करो लोगों के. Wow, that is so wonderful. That is really like you said that you have been together with your competitors and you have been working. That is something very incredible. I don't think I've heard something like this. This is so एक और एक beautiful. 11 होते हैं, एक और एक 111 होते हैं, फिर 211, 311, ऐसे हम लोग 911 हैं. Wow, that is beautiful. That is beautiful. So, can I ask you your journey, your transformational journey, when you felt that मुझे ये चीज जो है पाना है, or something, you felt something change in you, a shift, in your life. मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है. जब होगी तो मैं आपको बताऊंगा. मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि रोज कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होती है. आई हैव अ वेरी आई हैव अ सुपर वुमन ऑफ अ वाइफ जो हर चीज में मुझे सपोर्ट करती है. तो जब से वो मेरी लाइफ में आई है, तब से आई हैव बिकम अ डिफरेंट पर्सन. शी इज वेरी डिसिप्लिन, शी स्लीप्स एट 9, शी गेट्स अप एट 4:30, शी इज अ वेरी. तो उनके मेरी लाइफ में आने के बाद एक ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आई. अगेन संगत का फर्क है, मैं रहता हूँ उनके साथ, तो वो माय बिग ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड बिकॉज आई बिकेम अ डिफरेंट. लोग कहते हैं जब से यू गॉट मैरिड यू आर अ डिफरेंट पर्सन. तो आप डिसिप्लिन लोगों के साथ रहते हो तो, और क्लियर है, शी इज वेरी क्लियर माइंडेड. उनको जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए. शी इज वेरी हैप्पी कि आज सवेरा अच्छा निकला, एंड शी इज वेरी हैप्पी कि आज शाम बड़ी अच्छी हुई. दैट्स इट. उसको सच में जिंदगी में उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. सो आई एम वेरी, मेरे को बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मैं उससे देख के मैं ट्रांसफॉर्म होता हूँ कि जब मेरे को जो मुझे चाहिए नहीं मिलता, मैं फिर भी खुश रहने की कोशिश करता हूँ. सो वो ट्रांसफॉर्मेशन आती है विद अ गुड लाइफ पार्टनर. सो दैट इज देयर. एंड देन मैंने आपको बताया, माय डॉटर्स आर देयर, माय पेरेंट्स. मेरा जब भी दिमाग खराब होता है, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, और मेरे मॉम डैड ऐसे करते हैं कि मतलब किस बारे तुम्हारे को, मतलब वो बोलते नहीं है, लेकिन वो उस तरीके से बात करते हैं कि ऊपर वाला क्या सोचता होगा अगर तुम इतना कुछ होने के बाद भी दुखी हो. तो मतलब वो जो दुख है वो एक सिचुएशन का दुख है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, पर दुखी, हाथ टूट गया, किसी का पाँव टूट गया, किसी का कोविड में कोई मर गया, कुछ हो गया, और हम दुखी हो रहे. तो हमारे घर पे कभी डिनर टेबल पे किसी को रोना अलाउड नहीं था. रोना मतलब क्रेव करना, ये नहीं हुआ जी, वो नहीं हुआ. रो मत, शुक्रिया करो, बस खुश रहो. हाँ, प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करो, सॉर्ट आउट करेंगे क्या है, पर उसमें रोने की जरूरत नहीं है. तो वो चीज मेरे को रोज ट्रांसफॉर्म करती है. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं रोज गिरता हूँ,
और रोज मेरे आसपास का कोई आदमी मुझे ट्रांसफॉर्म करता है, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं हूँ कि मैं आपको बोलूँ मैं पहले ऐसे होता था वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। रोज गिरता हूँ और रोज कोई ना कोई उठाता है। Such wise words and such inspirational words that is coming from you. Thank you so much. I, being a coach, and these words are so powerful, and whoever will be watching this will really find a lot of value in this interview. And one thing that I would ask for my viewers, that when life throws unprecedented scenarios at you, how do you deal with it? Because every day during, especially during this time of pandemic, when everybody, someone is losing their jobs, someone is losing their loved ones, or something is happening, how would you ask them to deal with the situation, and how do you deal with it? पहले मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, शायद उसमें से कुछ लोगों को समझ आए कि वो क्या कर सकते हैं। पहले तो मैं डरता हूँ, जब कोई सिचुएशन आती है पहले डर लगता है, इनसिक्योरिटी होती है, लगता है कि सब खराब हो जाएगा। फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, फिर मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ, फिर वो मुझे रियलाइज करवाते हैं कि तुम घबरा रहे हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक जिंदगी का पार्ट है। उसके अगर हम प्रॉब्लम को सिर्फ फेस के अंदर जाके देखते हैं तो सिर्फ प्रॉब्लम दिखती है, थोड़ा उसको हाथ हटा के दूर करो, तो आपके फैमिली वाले क्या करते हैं, उसको दूर कर देते हैं। दूर से जब आप देखते हो तो आप, अरे ये तो एक प्रॉब्लम है, इसके आसपास भी बहुत कुछ है। फिर आपका जरिए, आपका तरीका बदल जाता है हर सिचुएशन को देखने का। सो मेरा हर इंसान के जैसे मेरा भी प्रोसेस यही है, पहले घबराहट होती है, फिर डर लगता है, फिर हम किसी से बात करते हैं, फिर लोग आपका आईना बदलते हैं, और फिर आप उसको अलग से देखना शुरू कर देते हो। अब जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे एक्सरसाइज करने का बहुत शौक है, सिर्फ क्योंकि एक्सरसाइज से माइंड ठीक रहता है। सूर्य नमस्कार, या जब आप सूर्य नमस्कार करते हो बहुत बार सांस चढ़ता है, फिर आप मेडिटेशन में जब बैठ जाते हो थोड़ी देर, तो मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करने लग जाते हो कि भाई अभी तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। आप उसको दूर बैठ के उसको ज्ञान, क्योंकि दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है, तो अगर आप अपने दो पार्ट कर लो और अपने आप को ही ज्ञान देने लग जाओ तो बहुत आसानी से क्या प्रॉब्लम है, देन यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ, और फिर प्रॉब्लम धीरे धीरे छोटी होनी शुरू हो जाती, देन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑन इट। और जब एक्शन लेते हो ना तो हमेशा रिजल्ट मिलता है। डर सिर्फ उस बात का होता है कि क्या होगा, होना कुछ नहीं है, जो होना है वो वैसे भी होना है, बट हम एक्शन नहीं लेते ना तो हमारे को नींद अच्छी नहीं आती। जो आदमी एक्शन लेता है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो काम के लिए, या आपके घर में कोई बीमार है, आप पूरी मेहनत कर रहे हो, तो डर लगता है, लेकिन एक्शन आप सो जाते हो, फिर अगले दिन फिर उनकी हॉस्पिटल में सेवा करते हो। जो भी डर है, किसी भी प्रकार का जो डर आता है, वो एक, पहली बात तो डर आपको अपने आप से मिलवाने के लिए आ रहा है। इट इज ओनली कमिंग सो दैट यू हैव मोर मीटिंग्स विद योर सेल्फ। बिकॉज क्या है कि हमारे अंदर अपना आई एम द सीईओ ऑफ माई ओन लाइफ। मैं सीईओ के पास जाना नहीं चाहता। यू नो व्हाई? हर आदमी अपनी कंपनी में सीईओ के पास नहीं जाता। क्यों? सीईओ आपसे पूरी रिपोर्ट कार्ड पूछता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बार बार जवाब देना अच्छा नहीं लगता। सेम वे इंसान अपने अंदर नहीं झांक के देखता। यू नो व्हाई? बिकॉज जब मैं अपने अंदर झांक के देखता हूं, मुझे आईना दिखता है, और आईने में मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, मेरा रिपोर्ट कार्ड सामने आ जाती है, तो मैं आईना देखता ही नहीं हूं। लेकिन जब डर आता है ना, तो डर आपको सीईओ के ऑफिस में जाने पे मजबूर कर देता है, अपने अंदर जाने पे मजबूर कर देता है। आप अंदर जाते हो, अपने आप से बात करते हो, और जब अपने आप से बात करते हो, देन यू गेट दोस काइंड ऑफ आंसर्स दैट यू नीड। Wow, you are truly a mentor. The way you are talking and the way you are actually making things so easy to understand for everyone. Beautifully said, beautifully. And I would Rashi, ask if you don't you. mind, can I take a 2-minute break? I'm getting a call from my family in India. If you don't mind, can I just take a 2-minute break? Absolutely, अभी absolutely. आया वापस। Yeah. So, sir, you are a multi-dimensional personality. You, as a person, you have worn different hats. You are an author, you are a mentor, you are an entrepreneur, you are a hotelier, doing so many things together. How do you keep reinventing yourself? Again, it comes to the company of people that you keep. आपको दिख जाता है दूर से कि चीजें बदलने वाली हैं, और आपको फिर यू नो ये डर जो आपका दोस्त होता है ना, जो डर, अरे चीजें बदलने वाली है, मैं क्या करूंगा, फिर आप सोचने लग जाते हो मैं आगे क्या करूं। सो हमेशा मैं वैसे भी
एज अ पर्सन आई कांट डू वन थिंग. मुझे हमेशा 2-3 चीजों में खेलने का मन होता है. तो एक मेरा हमेशा पैशन प्रोजेक्ट हमेशा साइड पे चल रहा होता है. खाना भी बनाओगे तो साथ में थोड़ी मैगी बना दो. खाना बना है फिर मैगी बनाने की क्या जरूरत है? पता नहीं, शायद मेरा मैगी खाने का मन करता है. एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, साइकिल भी रख लो गाड़ी में. क्यों? हम तो जिम जा रहे हैं, साइकिल रख लो, शायद रास्ते में साइकिलिंग करने का मन कर जाए. तो हमेशा एक पैरेलल चीज मैं लेके चलता हूँ जो एक एक्स्ट्रा भार होता है. आप आगे 2-3 लोग कहते हैं एक सिंगल चीज पे फोकस करो, ज्यादा सक्सेस मिलती है. शायद ज्यादा सक्सेस मिलती है, एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए, बट मेरे से नहीं होता. मेरे को 2-3 चीजें साथ में चाहिए होती है. और ज्यादातर ऐसे हुआ है कि एक चीज हमेशा दूसरे से आगे निकल गई है. और अब मुझे पता है कि कम से कम एट एनी गिवन टाइम आपके पास 4-5 चीजें होनी चाहिए. चूल्हे के ऊपर 4-5 सब्जियां एक साथ बनने होनी चाहिए, ताकि हमेशा कोई ना कोई सब्जी गर्म हो, खाने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा रेडी हो. सो फिर आप अपने आप को रीइन्वेंट कर लेते हो. आप जिन लोगों के साथ रहते हो देखते हो आप अब आज के डेट में लोग क्रिप्टो और एनएफटी कर रहे हैं. अगर मैं उसके बारे में सीख के 6 महीने के अंदर सक्षम नहीं, अभी भी लेट हो गए वैसे, 6 महीने तो बहुत दूर है, लेकिन अगर मैं उसमें सक्षम नहीं हुआ तो फिर नुकसान होगा, अपना ही नुकसान होगा. सो ये अब आगे बात कि बाकी लोग क्यों नहीं करते. लोग आलसी है, हम सब आलसी है. ह्यूमन बीइंग्स आर लेजी. हाउ डू यू कम गेट ओवर लेजीनेस? हर आदमी के अंदर एक आग होती है जो कुछ चीजों से जलती है. कुछ लोग बॉलीवुड जाना चाहते हैं, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई कुछ कोच, लाइफ कोच बनना चाहता है, तो उसके अंदर आग होती है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है. बाकी चीजों में मैं लेजी हूं, लेकिन जो मैं चाहता हूं उसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूं. सो यू हैव टू फाइंड व्हाट यू लाइक टू डू. फिर आप अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश करोगे. क्यों मैं बट जब आप रीइन्वेंट कर रहे होते आप ये सोचते नहीं हो मैं आप अपने आप को रीइन्वेंट कर रहा हूं. आप एक दूसरी डायरेक्शन में चल पड़ते हो, आप कुछ और बन जाते हो और आपको रियलाइज होता है अरे मैं तो रीइन्वेंट हो गया. लेकिन जब आप मेरी उम्र के पहुंचते हो, धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है हाँ मैं तो बदल गया हूं. एक डिफरेंट फ्यूचर के लिए आपको अपना प्रेजेंट बदलना पड़ता है. मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना, मैं बहुत स्ट्रांग होना चाहता हूं फिजिकली, तो मुझे टाइम पे सोना पड़ेगा, टाइम पे उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा. तो मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा एक डिफरेंट वर्जन के लिए. और वो अगेन चीज संगत के साथ आती है. मेरे में उस लेवल से नहीं है कि मैं अपने आप सब कुछ करूं. जो मेरी मेहनत, जो भी मैं चीजें आप करता हूँ वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं आसपास उन लोगों से सराउंडेड हूँ जो इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं कि मैं उनकी संगत में रह के मेरा भी कुछ काम हो जाता है. Wow. What wonderful takeaways my viewers are getting out of it. I'm really having a wonderful time listening to you. So, and what is that one thing that you would, I'm sorry if I'm taking up a lot of your time, but you know, my viewers are actually getting some some good value out of it. So can you tell me would you like to share with my viewers one thing that you have gained in all these years of with your experiences, life experiences and all that you have gained out of your entrepreneurial stints in life? That is one thing that has stayed with you and you are committed to that one thing? वन थिंग तो कहना मुश्किल है, बट द थिंग इज के जब आप किसी चीज को एक चीज है कि आप जब भी कोई प्रॉमिस करते हो ना किसी को, मैं आपको मिलूंगा 10:30 बजे या मैं आऊंगा या मैं ये करूंगा, तो वो प्रॉमिस की आपके लिए छोटे छोटे बहुत सारे प्रोमिस है, लेकिन किसी के लिए वो बहुत बड़े हैं. और दुनिया में अगर आपने रहना है, सोसाइटी में रहना है, बिजनेस में, किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है, तो आपको अपने प्रोमिस फुलफिल. सर मैं सुबह आता हूँ 10 बजे और अरे सर आज तो ट्रैफिक था, बारिश हो गई, कल मिले. दूसरा आदमी बोल देगा कोई बात नहीं कल मिलेंगे, लेकिन उसकी नजरों में कांटा लग गया आपके ऊपर, दैट यू आर नॉट अ सीरियस पर्सन. सो ये चीजें मेरे लाइफ में हमेशा रह गई हैं. नहीं, आप कमिटमेंट करके पीछे हटना बहुत मुश्किल है. होता है कभी तबीयत खराब होती है, कभी गला खराब होता है, कभी कुछ होता है, मुश्किल होता है, लेकिन जहां तक हो सके मीट योर कमिटमेंट. डोंट थिंक छोटी है या बड़ी है, बिकॉज उसी से आपका कैरेक्टर बनता है, उसी से दुनिया आपको जानती है. और अमिताभ बच्चन, मैंने सुना है कि रोज 50 से 100 कार्ड्स के ऊपर अपना सिग्नेचर करते हैं, फिर वो कार्ड लोगों को बर्थडे कार्ड्स कोरियर होते हैं रोज. इतना लोगों के साथ रिश्ता बनाया जाता है पर्सनली, हर लेवल पे झुक के नमस्कार करते हैं लोगों. सो यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी मिला है, अगर आदमी कोई भी कुछ चीज कह रहा है आपको, उस चीज को पर्सनली मत लो.
सिर पे चढ़ने मत दो, वो आपका है ही नहीं। आप काम करो बस। और काम में आप, यार मेरे को क्या मिलेगा, काम में जो मजा है ना वो आपको मिल रहा है, उसके अलावा आपका कुछ नहीं है। So true, so true. And now, quickly, I'll wrap up this interview by asking, those rapid fire type questions, like Sure. what has been your most daring decisions in life? Scary. Daring decisions, yeah. डेयरिंग डिसीजन, आई थिंक एक था कि जब वो कोविड आया था, वन डेयरिंग डिसीजन वो उसकी कंपनी को चलाते रखो या बंद करो या एक और कंपनी स्टार्ट करो, दोनों को स्टार्ट करो। तो वो बहुत डेयरिंग डिसीजन था कि चलते रहो। बहुत मुश्किल हो गया था सब उस टाइम। या दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग डिसीजन। And which is your favorite book? I know that you are an avid reader, and you ask your daughters also to read and write a lot, right? So which one would you say is your favorite book or among the favorites? आई थिंक रॉबिन शर्मा की जो बुक है, दैट्स माय फेवरेट, जो अभी नई वाली आई है उनकी, द हीरो मैनिफेस्टो, दैट्स माय फेवरेट वन नाउ। Okay. So, and which is your favorite food? फेवरेट फूड, अंडे की भुर्जी और परोठा। Wow. That is, I think most of the Indians that they love this. And मेरे को वो मिल जाए और साथ में अदरक वाली चाय, मुझे कुछ नहीं चाहिए। that's awesome. So who's your biggest critic? Your wife or your daughters? Yeah, both. Okay. So, and your favorite travel destination? वैंकूवर, घर, आई लव दिस सिटी, मुझे यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। Okay. And I know that I you like are to travel, but मुझे जरूरत नहीं पड़ती। वैंकूवर में यही बहुत कुछ है करने को। So we understand that you are an outdoorsy person totally. We see you going out and enjoying the nature. We keep watching you on reels and everything. That's awesome. And apart from that, this is the last question. What brings spice to your life? How do you add spice to your life? How do you keep going? पुराने दोस्त स्कूल के, कॉलेज के, उनके साथ हफ्ते में एक दिन मिलना, नहीं तो वीडियो कॉल करना, और हंस हंस के आप लोग पुरानी वही बातें जो 200 बार कर चुके हो उसको फिर 250 बार करते हो, उन्हीं बातों पे फिर से हंसते हो, एंड देन यू फील यंग, यू फील हैप्पी, और दैट एड स्पाइस टू माय लाइफ। अदर थिंग इज दैट आई लाइक टू रेस कार्स, मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। सो मैं गाड़ियां रेंट करता हूँ। अगर कोई स्पोर्ट्स कार आई है मार्केट में या कन्वर्टेबल आई है तो रेंट करके वीकेंड के लिए हर नई नई गाड़ियों को रेंट करके उनको चलाता हूँ मैं। Wow. Yeah. This is such a wonderful thing. I'm sure जो भी खासकर guys who are watching this interview, they will be like, oh my God, we are jealous of Abhi Arya. Because everybody has this, all the guys especially, they have this, innate, अंदर से एक होता है कि वो जो street car racer वाला that you keep telling is something which is so magnetic, that line is so magnetic altogether. Everybody wants to be one. अब तो रेस नहीं हो सकती वो सब, बट अब मैं ट्रैक पे जाता हूँ। महीने में एक बार ट्रैक है, घर से दूर है थोड़ा 2 घंटे, बट वो ट्रैक है, और वो ट्रैक पे वो लोग आपको सीट बेल्ट वगैरह लगा के गाड़ी देते हैं, तो ट्रैक पे यू कैन ड्राइव फास्ट। तो अब मैं महीने में एक बार 3-4 घंटे ट्रैक पे जाता हूँ। Manifesting your dreams, that is what it is. You love doing that. मतलब अगर करना है तो वो रास्ता ढूंढ ही लोगे। अगर आपको भूख लग रही है तो आप किसी तरीके से ढूंढ लोगे खाने की दुकान, आपको स्मेल आएगी और आप ढूंढ लोगे यहाँ खाना बन रहा है, आप ढूंढ। तो अगर आपको अच्छा लगता है ढूंढ लोगे, और नहीं अच्छा लगता तो जरूरी नहीं है कि अब किसी और की ख्वाहिश। तभी कहते हैं सपने आपके खुद के होने चाहिए, दूसरों के सपनों में टाइम मत लगाओ, क्योंकि दूसरों के सपनों में आप कहाँ करने की कोशिश करोगे, दिल ही नहीं करेगा। अपने आप करो। Don't try to make too much money. Try to make lots of fun. Because ये गाड़ी कब खत्म हो जाए किसी को पता नहीं। कोई 40 में खत्म हो जाता है, कोई 50 में हो जाता है। तो इतना लंबा प्लान मत बनाओ लाइफ का। 3 महीने का, 6 महीने का, साल का बनाओ। मेहनत करो, एक डेस्टिनेशन पे पहुंचो। छुट्टियां अपनी जिंदगी में जरूर डालो। अपने लोग कैलेंडर में, मैं देखता हूँ कैलेंडर में लोगों ने काम डाला होता है
Where is your time with your spouse? Where is your time for watch a movie? Where is your time to race a car? Where is your time to go to sleep? Where is your time to play video games? अरे have fun. नहीं पहले मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा फिर तो फन होएगा, तो फिर वो तो पता शायद ना हो, फिर उस लेवल पे सक्सेसफुल ना हो, फिर कोई ना कोई पंगा आता रहेगा। लाइफ में फन को डाल दो कैलेंडर में, पूरे साल में 2 3 4 छुट्टियां लेनी है मेरे को ये करना है, वो सारी चीजें डाल दो एंड कीप एंजॉयिंग लाइफ। ये सब चीजें चलती रहेंगी। So much to learn from you, sir. So much to learn, and these are real wise words. कि हम काम कर रहे हैं तो बस काम ही में लगे रहते हैं और लगता है कि कुछ और है नहीं जिंदगी में, but actually these are the moments which we look back and actually savor. ये जो moment of happiness. एक बार एक बहुत रईस इंडस्ट्रियलिस्ट एक छोटे गांव में जाता है और वो सुबह कहता है मैं थोड़ा सा चक्कर घूमने जाता हूँ। वो सुबह जाता है तो उसको सुबह 9-7-8 बजे के आसपास एक मछुआरा दिखता है। वो मच्छी की टोकरी लेके खड़ा होता है। वो कहता है ये तू क्या करता है भाई पूरा दिन? कहता है कुछ नहीं सर, 7-8 बजे नहीं 10 बजे के आसपास दिन में। कहता है 10-11 बजे मैं आता हूँ, बोट लेता हूँ, समुद्र से मच्छी पकड़ता हूँ, 8-10 मच्छी बेचता हूँ, 2 बजे तक बिक गई तो बिक गई, नहीं बिकी मैं तो घर चले जाता हूँ। फिर क्या करता हूँ? कहता है रास्ते में एक फेनी की बोतल उठाता हूँ, घर जाता हूँ, सो जाता हूँ, सो के उठता हूँ, शाम को मेरी वाइफ मच्छी बनाती है, मैं गिटार बजाता हूँ, 2 ड्रिंक पीता हूँ, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं उनके साथ खेलता हूँ, वाइफ के साथ घूमने फिरने निकलता हूँ, रात को 9-10 बजे सो जाता हूँ। कहता है तू तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। कहता है क्यों? कहता है तू अगर 10 बजे 11 बजे ऑफिस आता है तो उसकी जगह 6 बजे आए, 7 बजे आया कर। कहता है अच्छा फिर क्या होगा? कहता है तू 4-5 चक्कर लगा लेगा ना मच्छी पकड़ने के, बोट अभी तो एक बार बोट से निकालता है, फिर क्या होगा? कहता है तेरे पास 4-5 टोकरियां होंगी मच्छी की। कहता है फिर? कहता है 12 बजे घर जाने की जगह फिर तू शाम को 5 बजे घर जा। कहता है फिर? कहता है उसके बाद फिर अपनी दुकान डाल लियो, फिर बेचेगा भी तू और निकालेगा भी तू। कहता है फिर? कहता है फिर तेरी 4-5 जगह दुकानें होंगी। कहता है फिर क्या होगा? कहता है फिर तू एक्सपोर्ट करना शुरू कर दियो। कहता है फिर? कहता है फिर तेरी बोट अपनी खुद की हो जाएगी। कहता है फिर? कहता है फिर तू बहुत रईस हो जाएगा, दुनिया भर में तेरे ऑफिस होंगे। कहता है फिर? कहता है फिर वाइस प्रेसिडेंट लेवल के लोग रख लेना। कहता है फिर? कहता है फिर तू आराम से 12 बजे आना ऑफिस, 2-3 बजे तक देखना जो हो गया, शाम को घर जाना, 2 ड्रिंक पीना, सो जाना, उठना, गिटार बजाना, वाइफ और बच्चों के साथ खेलना, 9 बजे सो जाना। कहता है वो तो मैं आज भी कर रहा हूँ। कहता सर वो तो मैं आज भी कर रहा हूं। तो ये सब चीजें हम जो कर रहे हैं ना, दिस इज ऑल टू फाइंड आवर सेल्फ। ये सिर्फ एक तलाश है, एक उसको क्या, मैं उसका नाम भूल गया, आई थिंक महाभारत में या गीता में था, कंठ में एक हिरन होता है, उसके कंठ में एक नाम भूल गया उनका, मस्क उसको कहते हैं। हाँ, so he has that peculiar smell, right? So he is hunting all over the jungle, trying to understand where that smell is coming from. But the smell is coming from his own neck, from his own throat. So हम जो ये पैसा बनाना, ये करेंगे हम, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा है, ये सब चीजें अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं हम। इसके जो प्रोसेस में ना, इसके प्रोसेस में वी बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स। हम डिसिप्लिन हो जाते हैं, हम कुछ समझ जाते हैं। अपने आप को समझने के लिए इंसान को कुछ करना जरूरी है। तो ये हम अपने आप को समझने के लिए कोई चीज पकड़ते हैं, सो दैट जब आप काम करते हो, इफ यू आर अ पर्सनल कोच और इफ यू आर आर्किटेक्ट, इफ यू आर लॉयर, व्हाटएवर, आपका काम इज द मिरर ऑफ हु यू आर। आपके काम का लेवल और आपके अंदर का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज द सेम, उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। ये मिरर मैप्ड होता है। सो इसीलिए काम वो पकड़ो जिसका मिरर आपको रोज देखने में मजा आए, जिसके साथ आप ज्यादा सिंक में हो। काम हम अगर किसी और की मतलब का पकड़े, माँ बाप या किसी के कहा हुआ काम, और आप उसमें रोज अपने आप को ना देख सको, तो वो आप उसमें परफेक्ट बनने की कोशिश भी नहीं करते। दूसरी बात मैं ये लास्ट में कहना चाहूंगा आपके ऑडियंसेस को, आई डोंट थिंक गॉड और यूनिवर्स और भगवान ने किसी ने बोला आप आओ यहाँ मिलियनेयर बनो, गाड़ियां खरीदो, घर खरीदो। आई डोंट थिंक वो चीज है। हाँ, अच्छी घर में रहने में मजा आता है, अच्छी गाड़ी में मजा आता है, वो आता है, सब चीजें आएंगी। बट ये जो प्रोसेस है, दिस इज अ कोर्स। योर वर्क इज अ कोर्स, 20-30 ईयर कोर्स, 40 ईयर, जितने भी साल आप काम कर रहे हो। मैं 40 साल का, क्या होगा इस कोर्स से? मैं अपने बारे में सीखूंगा। यू लर्न अबाउट योर सेल्फ थ्रू द वर्क दैट यू डू फॉर अदर्स। तो ये इज द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो फाइंड दैट बॉडी ऑफ वर्क विच यू विल लव टू गो थ्रू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। और अगर अपने आप को कम समझना है तो कम समझो, बट एंजॉय द एक्सपीरियंस, बिकॉज दिस इज जस्ट एन एक्सपीरियंस। ये कुछ, इसको ज्यादा सीरियसली लेने का नहीं है।
इट्स नॉट अ सीरियस थिंग, क्योंकि इसके नंबर कहीं नहीं मिलने वाले। जब इंसान, एक बार मेरे को सपना आया था एक बार कि आई हैव डाइड एंड आई हैव गॉन टू हेवन, और मैं ऊपर गया तो ऊपर गॉड की सेक्रेटरी मुझे मिली। उन्होंने बोला कि गॉड आपको थोड़ी देर बाद मिलेंगे, आप बैठिए। तो उन्होंने मुझे कॉफी का कप दिया, और वो राशि, दैट कॉफी कप वाज मेरा फेवरेट कप, क्योंकि वो कप कभी गर्म नहीं होता, कभी ठंडा नहीं होता। कॉफी का कप वो सिर्फ लोग ठंडा, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है गर्म क्यों नहीं रहता हमेशा। वो कप हमेशा गर्म रहता था, बिकॉज गॉड नोज कस्टमर सर्विस, राइट। फिर हम बैठे काउच के ऊपर। काउच मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे कुर्सियां पसंद नहीं है। काउच होता है ना रिलैक्सिंग, बैठते हो आराम से। तो गॉड ने काउच में बिठाया, मैंने वेरी नाइस कस्टमर सर्विस। फिर गॉड की सेक्रेटरी ने बोला ये एक आईपैड है, इसमें मूवी है, आप इसको प्ले करेंगे, बड़ी टीवी पे चल जाएगा, और इस मूवी को देखिए, खत्म हो जाएगा तो कमरे में गॉड इज वेटिंग फॉर यू। मैंने कहा ओके। मैंने ऑन किया मूवी। इट वाज अ स्टोरी ऑफ माय लाइफ, जब मैं पैदा हुआ, क्या हुआ, किन किन लोगों से मिला, क्या क्या मैंने बातें बोली, राशि से कब मिला, इससे मिला, उससे मिला। सिर्फ एक फर्क था उस कहानी में, उस कहानी में मेरे साथ, मेरे ऊपर यहाँ एक हार्ट के ऊपर एक मीटर लगा हुआ था। वो मीटर मेरे को स्टोरी देखते देखते साथ के साथ ये बता रहा था कि मेरे कहे हुए हर शब्द ने दूसरे को कैसा महसूस करवाया। क्या मैंने कभी किसी को बोला कुछ जिससे उसको लगा कि वो बहुत छोटा है जिंदगी में, या किसी को लगा कि वाह मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो फीलिंग थी, किसी को अच्छी फीलिंग, किसी को बुरी, किसी को ये फीलिंग जो दूसरों को आ रही थी मेरी जिंदगी जीने की वजह से, वो मेरे को यार महसूस होता चला गया, ठक 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 ठक, ऊपर नीचे ऊपर। आई वॉज रियलाइजिंग एवरी मिनट of how I made other people feel. Those emotions were coming to me. Good, bad, good, bad, good, bad, good, bad. फिर मूवी खत्म हो गई, मुझे अपना स्कोर पता लग गया based on the emotions that I've had. मैंने आईपैड नीचे रखा, मैं अंदर दरवाजे के अंदर गया भगवान को मिलने। There was no God, there was a white light. And I knew exactly कि मैं जिंदगी में कहाँ हूँ एंड कितने मेरे को नंबर मिले हैं ये कोर्स करने के, जिसके लिए उन्होंने मुझे भेजा था। सो एंड में यही होने वाला है। So have fun, understand the course, क्यों क्या करने आए हो, and chill. This was such an incredible story, and such a powerful story that you have just narrated. And it's beautiful, and how meaningful it was. Like, yes, this is a course that we are all here for, and how much we mean, like we bring our life to, make a difference to others' life, how important it is. This is what this life is all about, and how many of us do understand that. And you as a mentor, when you're telling this to the world and you're impacting so many people that I've already seen, and not only impacting, you are actually making a difference to people's life in the businesses that you're doing. That's so wonderful. That is incredible. And thank you so much for coming here on my show, Manifest Your Quest, and making it so special. I'm feeling so wonderful that you have made this platform so special, and your words, your stories have actually added so much value to it. Thank you so much. Thank you very much, Rashi, for your time. Thank you, and sorry for the disturbance in between. The mic was not working, but no, that is absolutely awesome. That was an awesome interview, and I'm sure my guests here had such a wonderful takeaways, today, that they are going to watch some wonderful, these small lessons of life, which is so important, that we do not really, at times we forget and take it for granted, but it is so important, so very important. Thank you so much for sharing those things. Awesome. Thank you, Rashi. Take care of yourself. Bye for now. Bye.